آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ کورونا کی وبا روکنے متاثرہ علاقوں کو کنٹینمنٹ زون ظاہر کر کے وہاں عائد کی جائے سخت پابندیاں۔ سبھی دواخانوں میں دیگر سنگین بیماریوں میں مبتلا مریضوں کے علاج کے لیے بھی کیے جائے انتظامات۔ مہاتما جیوتیبا پھولے جن آروگیہ اسکیم کے CEO سدھاکر شندے نے دی متعلقہ افسران کو ہدایت۔ علاقائی کمشنر سنیل کیندریکر اور میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے دی سول ہسپتال کو وزٹ اور مریضوں کو دی جا رہی سہولتوں کا لیا جائزہ، متعلقہ افسران کو ضروری ہدایت۔ گھاٹی دواخانے میں زیر علاج غیر علامتی مریضوں کو منتقل کرنے کے لیے میلٹران ہاسپٹل میں 150 بیڈز کیے جا رہے ہیں ریزرو، کہا میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے۔ ہوم آئسولیشن کے لیے بھی پرائیویٹ پریکٹیشنرز کے لیے فیس کی مقرر۔ اور شاہنور واڑی سے متصل نیواس کالونی کے ساکنان کو سپلائی ہو رہا ہے آلودہ اور بدبودار پانی، وبائی امراض پھیلنے کا خطرہ، ساکنین کر رہے ہیں توجہ کا مطالبہ۔ خبریں تفصیل سے۔ اورنگ آباد ضلع میں کورونا وائرس کی دوسری لہر کے دوران جن مقامات پر کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد زیادہ ہے ان علاقوں کو کنٹینمنٹ زون ظاہر کر دیا جائے اور وہاں سخت پابندیاں عائد کی جائیں۔ یہ ہدایت مہاتما جیوتیبا پھولے جن آروگیہ یوجنا کے CEO سدھاکر شندے نے ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹرز مینجمنٹ کمیٹی کے ذمہ داران کو دی۔ اورنگ آباد ضلع میں کورونا مریضوں کی بڑھتی تعداد پر ہر کوئی فکر مند ہے۔ جہاں انتظامیہ مریضوں کی تعداد پر قابو پانے کی کوشش میں لگا ہے تو وہیں مریضوں کی تعداد تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ آئے دن کورونا مریضوں کی تعداد اور اس مرض سے ہونے والی اموات روز ایک نیا ریکارڈ بنا رہی ہیں۔ گزشتہ کل اورنگ آباد ضلع میں 25 کورونا مریضوں کی موت ہو گئی اور 1791 نئے کورونا پازیٹیو مریض پائے گئے۔ اورنگ آباد میں ایک دن میں ہوئی اموات اور پازیٹیو پائے گئے مریضوں کی تعداد کے لحاظ سے یہ اب تک کے سب سے بڑے ہندسے ہیں۔ ان حالات کے پس منظر میں آج اورنگ آباد ضلع کلکٹر دفتر میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوئی جس کی صدارت مہاتما جیوتیبا پھولے جن آروگیہ یوجنا کے CEO سدھاکر شندے نے کی۔ انہوں نے ہدایت دی کہ ضلع کے جن مقامات پر بڑی تعداد میں کورونا پازیٹیو مریض پائے جا رہے ہیں ایسے مقامات کو ممنوع علاقے یعنی کنٹینمنٹ زون قرار دیا جائے اور وہاں کورونا مخالف پابندیوں کو سختی سے نافذ کیا جائے۔ میٹنگ میں ضلع کلکٹر سنیل چوہان، میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے اور ضلع پریشد کے CEO ڈاکٹر منگیش گونداولے سمیت دیگر اعلیٰ افسران موجود تھے۔ اس موقع پر سدھاکر شندے نے انتظامیہ کی جانب سے اٹھائے جا رہے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا اور RT-PCR ٹیسٹ کا تناسب بڑھانے کا حکم دیا۔ انہوں نے ہدایت دی کہ کورونا پازیٹیو مریض کے رابطے میں آئے 10 لوگوں کے ٹیسٹ کیے جائیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی مریض غیر ضروری طور پر ICU میں داخل پایا جائے تو ایسے اسپتالوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ اس بات کو یقینی بنائے کہ سبھی اسپتالوں میں سنگین بیماریوں میں مبتلا مریضوں کے لیے بھی بیڈز مختص ہوں۔ اس کے علاوہ مریضوں کی تعداد، بنیادی سہولیات اور احتیاطی اقدامات سے متعلق معلومات کو ویب سائٹ پر اپ ڈیٹ کیا جاتا رہے۔ اس دوران ضلع کلکٹر نے بتایا اورنگ آباد ضلع میں بڑے پیمانے پر کورونا ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور گھاٹی اسپتال کی لیب اور ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کی لیب میں ہر دن بڑی تعداد میں نمونوں کی جانچ کی جاتی ہے۔ میٹنگ کے دوران میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے بتایا کہ کورونا کی موجودہ دوسری لہر کے دوران 104 لیبارٹریاں کام کر رہی ہیں جن میں 38 شہر میں ہیں جبکہ 66 دیہی علاقوں میں نمونوں کی جانچ کر رہی ہیں۔ ضلع پریشد کے CEO ڈاکٹر منگیش گونداولے نے بتایا کہ دوسری لہر کے دوران دیہی علاقوں میں ٹیسٹنگ بڑھا دی گئی ہے۔ علاقائی کمشنر سنیل کیندریکر اور میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے سول ہاسپٹل پہنچ کر وہاں حالات اور انتظامات کا جائزہ لیا اور متعلقہ افسران کو ضروری ہدایتیں دیں۔
دونوں اعلیٰ افسران کی اس وزٹ کے دوران انہوں نے یہاں زیر علاج مریضوں سے بھی بات چیت کی، جن میں متعدد مریض کورونا کے ابتدائی یا ہلکے اثرات کے شکار تھے۔ ان میں مرض کی نوعیت کا جائزہ لے کر کووڈ کیئر سینٹر منتقل کرنے کے احکام بھی دونوں افسران نے دیے، اور ساتھ ہی جن مریضوں کو آکسیجن بیڈ کی ضرورت ہے ایسے افراد کو فوری داخل اسپتال کر لینے اور ان کے معالجے میں کوئی کمی یا لاپرواہی نہ ہونے پائے اس بات کا خیال رکھنے کی ہدایت اسپتال کے عملے کو دی۔ کمشنر کیندریکر و پانڈے کے ہمراہ اس موقع پر ضلع سول سرجن ڈاکٹر ایس وی کلکرنی بھی موجود تھے۔ گھاٹی دواخانے میں زیر علاج غیر علامتی مریضوں کے لیے ملٹران ہاسپٹل میں 150 بیڈز ریزرو کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ہوم آئسولیشن کے مریضوں کے لیے خانگی ڈاکٹرز کی فیس بھی مقرر کر دی گئی ہے۔ یہ اطلاع میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستی کمار پانڈے نے MCN کو دی۔ میونسپل کارپوریشن کا تیار کردہ چکل تھانہ کا ملٹران کمپنی کا کووڈ کیئر سینٹر کئی جدید سہولیات سے آراستہ ہے۔ اس سینٹر میں 350 بیڈ ہیں، جن میں سے 150 بیڈ گھاٹی و ضلع سول اسپتال میں 5 تا 6 روز معالجہ کروا چکے مریضوں یا ایسے مریضوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں جن کے کورونا کے اثرات میں کمی آ چکی ہے۔ گزشتہ روز عدم سہولیات و لاپرواہیوں کی خبروں کے گشت میں آنے کے بعد کمشنر بلدیہ آستی کمار پانڈے نے ملٹران کے تمام ذمہ دار ڈاکٹروں کی میٹنگ لی اور ہدایات دی ہیں کہ مریضوں کے علاج معالجے اور سہولیات کی فراہمی میں کوئی لاپرواہی نہ برت۔ انہوں نے وضاحت کی کہ کوئی کمی یا ضرورت اگر آن پڑی ہیں تو اسے فوری پورا کیا جائے گا۔ دواؤں کا ذخیرہ فوری فراہم کرنے کے احکام انہوں نے ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر BD راٹھوڑ کو دیے۔ گھاٹی سے ریفر کیے گئے 150 مریضوں کے لیے بیڈ ریزرو رکھنے اور بقیہ پر جزوی طور پر کووڈ متاثرہ یا غیر علامتی مریض رکھے جانے کی اطلاع بھی کمشنر نے دی ہے، اور بتلایا کہ ملٹران میں شریک سیریس مریض روزانہ ضرورت کے مطابق گھاٹی منتقل کیے جاتے رہیں گے، اور حالت میں سدھار آئے مریضوں کو گھاٹی و ضلع سول اسپتال سے ملٹران بھجوا دیا جائے گا۔ اسی طرح کمشنر نے اپنے فیس بک لائیو کے ذریعے ایک اہم حکم جاری کرنے سے متعلق وضاحت کی، جس کی روح سے اب ہوم آئسولیشن کے مریضوں کے لیے علاج کے لیے ڈاکٹروں کی فیس مقرر کر دی گئی ہے۔ اب یہ ڈاکٹر مریض سے یومیہ 200 روپے 10 دن کے علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ 2000 اور گھر پر وزٹ کے لیے 300 روپے یومیہ لینے کے مجاز و پابند ہوں گے۔ انہوں نے عوام سے گزارش کی ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ابتدائی آثار دکھائی دینے پر مریض اپنے گھروں پر ہی ڈاکٹروں کی صلاح کے مطابق علاج کریں اور ہوم آئسولیشن میں ہی علاج کروائیں، تاکہ سنگین و شدید حالت کے مریضوں کو اسپتالوں میں بیڈ کی کمی یا قلت نہ پیش آئے۔ होता की होम आयसोलेशन साठी जे डॉक्टर्स फीस घेत आहे होम आयसोलेशन मध्ये सुपरविजन साठी ते फीस खूप जास्त आहे। तर याच्यामुळे आजच मी औरंगाबाद महानगरपालिका तर्फे एक पत्र आम्ही इश्यू करत आहे आणि सर्व असे पेशंट ज्यांना होम आयसोलेशन अवेल करायचे आहे, होम आयसोलेशन पाहिजे, त्याच्यासाठी पर डे 200 रुपयाची फीस फिक्स करण्यात येत आहे। आणि जर डॉक्टरला स्वतः त्या पेशंटला बघण्यासाठी विजिट करावा लागला देन 300 कॅन बी चार्ज मॅक्सिमम पर डे। 200 रुपये आणि मॅक्सिमम 2000 रुपीज फॉर वन पेशंट होम आयसोलेशनच्या चार्ज फिक्स करण्यात येत आहे। याच्यापेक्षा जर जास्त कोणी डॉक्टर होम आयसोलेशनसाठी चार्ज करत आहे देन महानगरपालिकाच्या वॉर रूम आमच्या जे आहे ते तिथे आपण कंप्लेंट करू शकत आहे। महानगरपालिकाचे व्हॉट्सअप पेज आहे, आमच्या फेसबुक पेज आहे, तिथे पण तुम्ही रायटिंगमध्ये एक ॲप्लिकेशन देऊ शकत आहे। तुम्हाला आमच्याकडे येण्याची गरज नाही आहे। जर तुम्ही आमच्या फेसबुक पेजवर पत्र टाकला वी विल टेक द कॉग्निजन्स। तो अगेन रिपीट करत आहे, असे सर्व पेशंट जे होम आयसोलेशन अंडर द डॉक्टर मेडिकल सुपरविजन घेऊ इच्छितात आहे त्या होम आयसोलेशनसाठी एक डॉक्टर एक पेशंटकडून प्रति दिवस 200 रुपये अथवा मॅक्सिमम 2000 रुपीज चार्ज करू शकत आहे। याचप्रमाणे जर डॉक्टर या 10 दिवससाठी त्याने 2000 रुपये चार्ज केले मेडिकल सुपरविजनसाठी, बट इमॅजिन की त्या 10 दिवसमध्ये डॉक्टरला 2 दिवस इथे घरी विजिट करावा लागला, तर त्याच्यासाठी पर विजिट डॉक्टर मॅक्सिमम 300 रुपीज डॉक्टर चार्ज करू शकत आहे। हे दर फिक्स करण्यात येत आहे आणि याच्या सर्व डॉक्टरांना, मेडिकल प्रोफेशनल्सना
माझी पर्सनल विनंती आहे की हे रेट जे आम्ही औरंगाबाद महानगरपालिका फिक्स करत आहे त्याच्या आपल्याला पुढील काही महिना पालन करायचे आहे. जेव्हा हे आणीबाणीचा काल गेला तेव्हा आम्ही हे पत्र जे आहे ते परत घेणार. औरंगाबाद ज़िले के देही मकामात पर भी कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद में आए दिन इजाफा होने लगा है. लिहाजा ताल्लुका सतह पर 99 नए कोविड केयर सेंटर शुरू किए जा रहे हैं. ये इत्तला ज़िला परिषद के शोबे सेहत से मौसूल हुई है. औरंगाबाद ज़िले में फिलवक्त देही मकामात पर कोरोना वायरस के सरगर्म मामलात की तादाद 2400 के आसपास है और इस तादाद में यौमिया 300 से ज़्यादा मामलों का इजाफा हो रहा है. ज़िले में औरंगाबाद, गंगापुर, कन्नड़, वैजापुर और पैठन तालुकों में मरीज़ों की तादाद सबसे ज़्यादा है. मरीज़ों की बढ़ती तादाद को देखते हुए ज़िला परिषद ने देही इलाकों में नए कोविड केयर सेंटर्स शुरू किए हैं. इससे पहले 15 नए कोविड केयर सेंटर्स शुरू किए गए थे, जिनमें अब 99 सेंटर्स का इजाफा हो गया है. नए शुरू किए गए कोविड केयर सेंटर्स में शरनापुर का औरंगाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल, वैजापुर का लड़कियों का सरकारी SC/ST हॉस्टल, खुल्दाबाद का मरकज़ और फुलंबरी, गंगापुर और कन्नड़ के मराकज़ शामिल हैं. ज़िला परिषद के महकमे सेहत ने ये जानकारी दी. बीड़ बाईपास रोड पर सर्विस रोड की तामीर में हायल मकानात की इन्हदामी कार्रवाई गुज़िश्ता हफ्ता शुरू की गई थी, जो इस हफ्ते मुकम्मल हो जाएगी. ये इत्तला एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम ने MCN को दी. उन्होंने MCN को बताया कि बीड़ बाईपास रोड पर होने वाले सड़क हादसात की रोकथाम के पेश नज़र इंतज़ामिया ने हाईवे की दोनों जानिब सर्विस रोड तामीर करने का फ़ैसला किया था, जिसके बाद इस सड़क के तामीरी काम में हायल मकानात की इन्हदामी कार्रवाई शुरू कर दी गई थी, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात के सबब ये कार्रवाई रोक दी गई थी. लिहाजा अब गुज़िश्ता हफ्ते से यहाँ रास्ते में हायल 23 पुख्ता इमारतें मुनहदिम करने का आगाज़ किया गया है और रोज़ाना 3 से 4 इमारतें JCB और इलेक्ट्रिक कटर्स की मदद से तोड़ी जा रही हैं. एडिशनल कमिश्नर रविंद्र निकम के मुताबिक ये कार्रवाई इस हफ्ते के इख्तिताम तक मुकम्मल हो जाएगी. बीड़ बाईपास के ताल्लुक से हाईकोर्ट के डायरेक्शन से 23 प्रॉपर्टी बीड़ बाईपास की रास्ते में जो बाधित थी 60 मीटर के रास्ते में, उस प्रॉपर्टी पर जो 23 अतिक्रमण बाकी रहे थे, वो कोरोना की वजह से हमने उसको कोरोना की वजह से हमने उसको थोड़ा टाइम दिया था और लॉकडाउन होने की वजह से भी वो काम कर नहीं पाए. लेकिन हमने अभी 8 दिन से कंटिन्यूसली वो मुहिम चालू किए है. 2-4 माले की बिल्डिंगें भी तोड़े हैं और कुछ बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो RCC की बिल्डिंग्स थे वो भी तोड़े हैं और साधारणतः वो काम ये हफ्ते में ख़त्म हो जाएंगे और बीड़ बाईपास पूरी तरीके से 60 मीटर हो जाएगा, जिसमें कुछ भी अतिक्रमण रहेगा नहीं. और नागरिकों को ये इत्तला देना चाहते हैं कि महानगरपालिका के जो रोड्स है उस पर अतिक्रमण ना करें और आपका खुद का नुकसान बचाए और महानगरपालिका को सहकार्य करें. कुछ भी प्रॉपर्टी लेने से पहले महानगरपालिका के रोड में वो प्रॉपर्टी है या नहीं है, ये भी देखना महानगरपालिका फिर आकर के देखने के बाद ही प्रॉपर्टी खरीदिए, वरना आपका नुकसान हो सकता है. इसलिए आप महानगरपालिका में संपर्क करने के बाद ही प्रॉपर्टी लीजिए. ऐसा गुजारिश महानगरपालिका की तरफ से मैं करता हूँ. धन्यवाद. 2 रोज़ पहले मज़ाफ़ाती इलाक़ों में जो बेमौसमी बारिश और ओलाबारी हुई है, उससे फुलंबरी के किसान भी शदीद मुतासिर हुए हैं, मगर अब तक मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया की जानिब से उनके नुक़सानात का पंचनामा भी नहीं किया गया. लिहाजा वो हुकूमत से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं. नाजरीन, यूँ तो पिछले कई बरस से किसान आसमानी व सुल्तानी आफतों से घिरा और तबाहाल ही रहा है. गुज़िश्ता बरस किसानों को कुछ राहत मिली थी, लेकिन इस साल फिर पिछले 2 दिनों तक हुई बेमौसम बरसात, तूफ़ानी हवाओं और कई मकामात पर हुई ओलाबारी ने फिर एक बार किसान बरादरी को तबाह कर दिया और
उनकी गेहूं, चना, मकई और प्याज व दीगर बागाती फसलें बर्बाद हो गई हैं। ताल्लुका फुलमरी के मंजाखोरा, तलेगांव, टाकली कोलते, अलंद, पीरबावड़ा व बड़ौद बाज़ार सर्कल इलाक़ों में बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए। जानवरों का चारा जो आइंदा मौसम गर्मा के लिए ज़ख़ीरा करके रखा गया था, बारिश से भीग कर सड़गल गया है। हवाओं बारिश से कई मकामात पर बिजली के तार टूट जाने से बिजली फराहमी मसदूद हुई और कई गाँवों में अंधेरा छा गया था। इन तबाहकुन हालात में जबकि किसानों तक हुकूमत की इमदाद और राहती स्कीमों को जल्द अज जल्द पहुँचाने की ज़रूरत है, लेकिन शोबा ज़राअत के अभी तक गाफिल होने और हालात की खबरगिरी तक न करने की शिकायत किसानों व साकिनान ने इंतहाई नाराज़गी और अफसोस के साथ की है। साथ ही प्रहार संगठन ने इल्ज़ाम लगाया है कि इलाके के ज़रई अफसर दफ्तर पर रहते ही नहीं हैं और संगठन के ज़िला सदर सुधाकर शिंदे ने नुमाइंदगी की बात कहते हुए वाज़ेह किया है कि ज़रई अफसर अगर दफ्तर पर न मिले तो वो शोबा ज़राअत के दफ्तर ही को ताला ठोंक देंगे। गुज़िश्ता दिनों आलूदा पानी के सबब तारीख़ी सालम अली तालाब में मौजूद सैकड़ों मछलियाँ किनारे पर मुर्दा हालत में पाई गई थी। ये खबर मंजर आम पर आने के बाद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जानिब से तालाब से मुर्दा मछलियाँ निकाली गईं। उनमें से कुछ मछलियाँ लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए यूनिवर्सिटी भिजवाई गई हैं। नाजरीन, सालम अली तालाब के किनारे मुर्दा हालत में मछलियां पाए जाने की खबर मंजर आम पर आने के बाद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अचानक हरकत में आ गया और तालाब से तकरीबन 10 क्विंटल मुर्दा मछलियां बाहर निकाली गईं, जिन्हें थैलों में बंद करके किसी महफूज मकाम पर ज़ाय किया जाएगा। लेकिन उन्हें ज़ाय करने से पहले उनमें से कुछ मछलियां यूनिवर्सिटी में क़ायम की गई लेबॉर्ट्री भिजवाई गई हैं ताकि उनकी मौत की असल वजह दरियाफ़्त की जा सके। शाहनूर वाड़ी से मुत्तसिल निवास कॉलोनी में गुज़िश्ता कई दिनों से नलों के ज़रिए आलूदा और बदबूदार पानी सप्लाई होने की शिकायत इलाके के साकिनान ने MCN से की है। निवास कॉलोनी के साकिनान का कहना है कि इस कॉलोनी को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन कहीं से फूट गई है और उसमें ड्रेनेज का गलीज़ पानी दाखिल होने लगा है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता कई दिनों से उन लोगों को नलों के ज़रिए आलूदा और बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा है, जिसके इस्तेमाल से वो लोग मुख्तलिफ वबाई अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। हालांकि उन लोगों ने मुतालिका अफसरान को इस मसले से कई मरतबा वाकिफ़ करवाया, मगर किसी ने भी आज तक इस जानिब तवज्जो नहीं दी। उन लोगों का मुतालबा है कि पाइपलाइन के लीकेजेस फौरी बंद करवाए जाएँ और उन्हें जरासीम से पाक, साफ़ व शफ़ाफ पानी फराहम करवाया जाए। पाईपलाईनच्या शेजारी असल्यामुळे पूर्ण ड्रेनेजचं पाणी मध्ये येतं आणि आम्हाला तेच पाणी येतं। 6 वर्षापासून आम्ही पाण्याचा त्रास काढतो, पण आमचं कोणीही ऐकलं नाही आणि आमचे या सर्व नागरिकांची कोणीही दखल घेतलेली नाही आणि यामुळे आम्हाला खूप त्रास होण्याची भीती वाटते। आता सध्या कोरोना या आजाराचे साथ चालू आहे आणि सांगता येत नाही, कदाचित आमच्याकडे पण त्याचा दुरुपयोग आला तर आम्ही काय करायचं याची काळजी कौन घेना। ज़राअत के जदीद तरीक़ों से जहाँ पैदावार में इजाफ़ा हुआ है, वहीं रिवायती खेती से जुड़े कई कारीगर बेरोज़गार हो गए हैं और उन पर फाखा कशी की नौबत आ चुकी है, लेकिन हुकूमत इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। मौजूदा दौर में जहां साइंस और टेक्नोलॉजी ने ज़िंदगी को आसान बनाया है, तो वहीं हर शोबे में टेक्नोलॉजी के दाखिले से पैदावार में भी इजाफ़ा हुआ है और वक्त की बचत होने लगी है। लेकिन हर चीज़ के अपने फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। इसी तरह ज़राअत के शोबे में भी टेक्नोलॉजी ने न सिर्फ ज़िंदगी आसान बनाई है, बल्कि पैदावार के साथ साथ मशक्क़त को भी आसान बनाया है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी है। ज़राअत के जदीद तरीक़ों और ट्रैक्टर के इस्तेमाल से रिवायती खेती के औजार बनाने वालों पर भुखमरी की नौबत आ गई है। इनमें बढ़ई और लोहार शामिल हैं, जो अब मजदूरी करके गुजारा करने पर मजबूर हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के वजूद में आने से पहले रिवायती खेती में बढ़ई से ज़रई औजार ख़रीदे जाते थे, साथ ही लोहार से कुल्हाड़ियाँ, फावड़े और फन ख़रीदे जाते थे, जिससे इन लोगों का भी गुज़र बसर हो जाया करता था। इस तरह की खेती को बलूतेदार तर्ज की खेती कहा जाता था, लेकिन अब बलूतेदार मजदूरी करके दिन काट रहे हैं। नतीजतन कारीगरों की तादाद दिन ब दिन घटती जा रही है। कामच नाही कसं काय काम सगळे ट्रॅक्टरचे अवजार झाल्यामुळं काय कामच नाही ना ते शेतीतलं राहिलेलं सगळं ट्रॅक्टरवर होत आहे काम।
आता शेतीतले काय अवजार कामाला येतात काय नाही, फक्त कुऱ्हाड कुदळ येते, बाकीचं काय येत नाही, फसा फिसा काय येत नाही. त्या हे बैल राहिले नाही, ते सगळं ट्रॅक्टरवर व्हायला लागलंय. त्याच्यामुळं काय शेतीतलं काम येणं गेलंय. आपलं परवडायचं आता काय विलाज नसल्यामुळं काहीतरी करून करत बसायचं काम आहे. ज़िला इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता शाम तक ज़िले में कोरोना से मुतासरा 56,000 से ज़ायद अफराद सेहतियाब हो चुके हैं, जिन्हें डिस्चार्ज दिया जा चुका है, जबकि तकरीबन 13,000 अफराद अब भी कोरोना से मुतासिर हैं, जिनका मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। गुज़िश्ता रोज़ ज़िले में 1,791 नए कोविड मुतासरा मरीज़ों के इजाफे के साथ अब ज़ेर इलाज मरीज़ों की तादाद 12,949 हो गई है। इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ इस जानलेवा मर्ज़ के सबब हुई 25 अफराद की हिलाकतों के साथ अब तक के कोरोना महलूकीन की तादाद 1,464 हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ नए मुतासरीन में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हदूद से 1253 और ज़िले के दीगर मकामात से 538 अफराद का शुमार है, जबकि इस मर्ज़ के सबब ज़िंदगी गंवाने वालों में घाटी अस्पताल में 19, ज़िला सिविल अस्पताल में 1 और दीगर खानगी अस्पतालों में 5 अफराद व ख़वातीन शामिल हैं। नाज़रीन, हमारे ज़िले में तेज़ी से कोरोना शहरियान पर हमलावर होने लगा है और यौमिया सैकड़ों अफराद के इस मर्ज़ में मुब्तला होने की तस्दीक हो रही है। इसके बावजूद कुछ गिने चुने शहरियान ऐसे हैं जो ये मानने के लिए ही तैयार नहीं हैं कि कोरोना जैसी कोई बीमारी भी मौजूद है, और यही वजह है कि वो लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से भी गुरेज करते हैं। हालांकि सरकारी दवाखानों के अलावा खानगी दवाखानों में भी कोरोना से मुतासरा मरीज़ों की भरमार है और हालात काबू से बाहर होने लगे हैं, जिस पर काबू पाने की गर्ज से इंतज़ामिया ने कोरोना की जांच बढ़ा दी है, जिसके बाद मज़ीद सैकड़ों अफराद इस मर्ज़ में मुब्तला पाए जाने की तस्दीक हो सकती है। वो शहरियान जो कोरोना को कोई वबा मानने तैयार नहीं हैं, उनसे हम MCN की जानिब से ये अपील करते हैं कि वो भले ही इसे वबा न माने, मगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अगर कोरोना से होने वाली अमवात का जायज़ा लिया जाए तो उसमें उम्र रसीदा अफराद की तादाद ज़्यादा है, लिहाजा उम्र रसीदा अफराद पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, और अगर उन्हें नज़ला, ज़ुकाम और खांसी के अलावा सांस की शिकायत होती हो तो फौरी तौर पर इनका इलाज व मुआलजा करवाया जाए। कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र सरकारी दफातर में आने वालों का एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ इन दफातर में 25 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव पाई गई है, जबकि ताजिरों और मुलाजमीन के एंटीजन टेस्ट में 53 अफराद इस मर्ज़ में मुब्तला पाए गए हैं। इसी तरह एंट्री पॉइंट्स पर की जा रही टेस्टिंग में 92 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ शहर के 5 सरकारी दफातर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सदर दफ्तर में हुई जांच में 23 में से 7 अफराद पॉजिटिव, पुलिस कमिश्नर ऑफिस में 20 टेस्ट में 6, ज़िला कलेक्टर दफ्तर में 51 में 4, डिवीज़नल कमिश्नर ऑफिस में 58 में 4 और RTO ऑफिस में 57 अफराद के किए गए टेस्ट में 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी तरह शोबे सेहत के मोबाइल टेस्टिंग स्क्वाड ने ज़िला व्यापारी महासंघ के ताउन से 6 मकामात पर कोरोना की जांच की, तो न्यू गुलमंडी में 50 में से 2, अंगूरी बाग में 47 में से 15, बालाजी धर्मशाला में 23 टेस्ट में 1, अदालत रोड इलाके में 119 अफराद की जांच में 12 पॉजिटिव, रंगार गली में 37 में 8 और पाटीदार भवन में की गई 49 अफराद की जांच में 15 व्यापारी व मुलाजिम अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की इत्तला कॉरपोरेशन के शोबे सेहत ने दी है। जबकि कोरोना के फैलाव में इजाफे को देखते हुए अब शहर के एंट्री पॉइंट्स पर भी 6 मकामात पर एंटीजन टेस्ट किए गए, जिनमें चिकल थाना दाखिला पॉइंट पर 83 अफराद में 15 के जांच के नमूने पॉजिटिव। इसी तरह दीगर पॉइंट्स में हरसुल टी पॉइंट पर 108 में 25, कंचनवाड़ी में 59 में 18, झाल्टा फाटा 122 में 12, अहमदनगर नाका 194 में 15 और दौलताबाद टी पॉइंट पर 55 में 7 अफराद की एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस तरह एंट्री पॉइंट्स पर जुमला 99 अफराद के नमूने पॉजिटिव पाए गए हैं। तालुका फुलंबरी को कोरोना से निजात दिलाने की गर्ज से कांग्रेस पार्टी के नायब तालुका सदर संदीप बोरसे मैदान में उतर चुके हैं और उन्होंने अपने ज़ाती अखराजात से मुख्तलिफ मकामात पर जरासीम कश दवाओं का छिड़काव करवाया।
फुलंब्री शहर और ताल्लुक़े के गांवों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस वबा पर काबू पाने के लिए ग्राम पंचायत की जानिब से मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं, जिनमें सैनिटाइज़र का छिड़काव और लोगों को मास्क पहनने की तरगीब देना शामिल हैं। इस बीच फुलंब्री ताल्लुक़े के कांग्रेस ताल्लुक़ा सदर और ज़रई पैदावार बाज़ार कमेटी के साबिक़ सभापति संदीप बोरसे ने बुध के रोज़ वारे गांव में लोगों को मास्क लगाने की अहमियत समझाई और गांव में सैनिटाइज़र का छिड़काव किया। उन्होंने कहा कि गांव की तरक्की से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और लोगों की सेहत की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। ताल्लुका कन्नड़ के एक छोटे से गांव भिलदरी तांडा की साकिन चांगुना राठौड़ नामी दोशीज़ा ने मॉन्टेक्स बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल हासिल करके अपने गांव का नाम रोशन किया है। कन्नड़ ताल्लुक़े का छोटा सा गांव भिलदरी तांडा, यहाँ न बुनियादी सहूलतें हैं और न ही जदीद वसाइल। इन नामुसाइद हालात में गांव की एक लड़की ने अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर ऊंची उड़ान भरते हुए कौमी सतह पर गांव का नाम रोशन किया है। भिलदरी तांडा की रहने वाली चांगुना राठौड़ ने कौमी सतह के मॉन्टेक्स बॉल क्रिकेट मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल किया है। चांगुना के वालिद एक गन्ना मजदूर हैं जो 6 महीने गन्ना तोड़कर अपनी ज़िंदगी की गाड़ी खींच रहे हैं। इस मेहनतकश बाप की मजबूत इरादों वाली बेटी चांगुना ने अपने वालिद से वादा किया था कि वो उनका नाम रोशन करेगी और उसने किया भी। दिल्ली के करीब गाज़ियाबाद में खेले गए मॉन्टेक्स बॉल क्रिकेट मुकाबलों में चांगुना ने ऑलराउंडर के तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अपनी बेटी की कारकर्दगी से फूले न समा रहे रमेश राठौड़ ने कहा कि उन्हें 2 बेटियां हैं और इन बेटियों ने कभी उन्हें बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी। MCN से बात करते हुए चांगुना ने कहा कि उनका अगला निशाना ओलंपिक गेम्स होंगे। सायगव्हाण व भिलदरी पंचक्रोशीतील विद्यार्थिनी साबुना राठोड हिने या ठिकाणी नॅशनल मॉन्टेस्क्यू बॉल क्रिकेट स्पर्धेत जे यश मिळवलं आहे ते खरोखर आपल्या गावाच्यासाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण असं काम तिने या ठिकाणी केलेलं आहे। आणि आटकेपार झेंडा जसं आपण म्हणतो तसं आपलं हे सायगव्हाण आणि भिलदरी गाव जे आहे हे या ठिकाणी दिल्लीसारख्या अत्यंत देशाच्या महत्त्वपूर्ण ठिकाणी कोरून एक नवा इतिहास तिने या ठिकाणी रचला। म्हणून मी आमच्या शाळेच्या वतीने आणि आमच्या मुख्याध्यापक व संस्थेच्या वतीने या ठिकाणी चाबुना राठोडीचं या ठिकाणी भरपूर असं अभिनंदन करतो, कौतुक करतो आणि तिला धन्यवाद देतो। आणि इथून पुढच्या आयुष्यात तिने या ठिकाणी आपलं जे कारकिर्दी आहे ती अशीच उज्ज्वल करावी व गावाबरोबर देशाचं नाव रोशन करावं अशी मी तिला या ठिकाणी सर्वांच्या वतीने शुभेच्छा देतो। शादी का झांसा देकर एक दोशीज़ा का 4 साल तक जिस्मानी इस्तेहसाल करने वाले मुलजिम के खिलाफ उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस तहकीकात कर रही है। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा लड़की और मुलजिम आनंद दिलीप जाधव की 2017 में दोस्ती हुई। दोस्ती फिर प्यार में बदल गई और प्यार देखते ही देखते जिनसी हवस में तब्दील हो गया। मुतासरा लड़की की शिकायत के मुताबिक मुलजिम ने लड़की को मुख्तलिफ मकामात पर ले जाकर उसके साथ जिनसी ज़्यादती की। इस दौरान वो लड़की को शादी का लालच देता रहा और उससे जिनसी तस्कीन हासिल करता रहा। इस दौरान जब भी लड़की हामिला हुई और उसने शादी पर इसरार किया तो मुलजिम ने 2 मरतबा उसका हमल साखित करवाया। बाद में जब लड़की की जानिब से शादी करने का मुतालबा ज़ोर पकड़ने लगा तो मुलजिम ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। मुतासरा लड़की को जब इस बात का एहसास हुआ तो उसने पीर के रोज़ उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और खातून PSI साधना आढ़ाव मामले की जांच कर रही हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। कोरोना की वबा रोकने मुतासरा इलाकों को कंटेनमेंट जोन जाहिर करके वहां आयद की जाए सख्त पाबंदियां। सभी दवाखानों में दीगर संगीन बीमारियों में मुब्तला मरीजों के इलाज के लिए भी किए जाए इंतजामात। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य स्कीम के CEO सुधाकर शिंदे ने दी मुतालिका अफसरान को हिदायत। इलाकाई कमिश्नर सुनील केंद्रेकर और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ कुमार पांडे ने दी सिविल अस्पताल को विजिट और मरीजों को दी जा रही सहूलतों का लिया जायजा। मुतालिका अफसरान को जरूरी हिदायत।
घाटी दवाखाने में जेर इलाज गैर अलामती मरीजों को मुंतकिल करने के लिए मेल्ट्रॉन हॉस्पिटल में 150 बेड्स किए जा रहे हैं रिजर्व, कहा म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने। होम आइसोलेशन के लिए भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के लिए फीस की मुकर्रर। और शाहनूरवाड़ी से मुत्तसिल निवास कॉलोनी के साकिनान को सप्लाई हो रहा है आलूदा और बदबूदार पानी, वबाई अमराज फैलने का खतरा, साकिनीन कर रहे हैं तवज्जो का मुतालिबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।